watching something. So when we are talking about diabetes type 2, let's see, diabetes is basically triggered because of our eating habits. See, just a few minutes back, I was telling about how I encountered many patients who were very anxious about many things, whether it could be their spouse health, whether it could be their health, or anxiety about their future, about their career. Many things were there. So then the question arises, so is it only the stress that has caused diabetes? I say no. Stress alone itself cannot trigger diabetes. But when we are anxious, when we are having some bad day, it is most of us have the habit of taking heavy food. We start eating a lot. That can leads to hyperglycemia. Now, there is also some hormonal imbalances that occur during stress. Like when we say stress, we call there is hormone secretion, like cortisol. So it is not only a stress hormone. If we think, I'm just going a bit of pathophysiology. I know it's none of something that is quite above of all you guys, but still, when we are talking about some hormonal changes in the body, why only stress or something like that can trigger diabetes? The main reason is cortisol. Cortisol itself is called a stress hormone. But when we are talking about the pathophysiology, cortisol also leads to glycosylation, means it can result in production of glucose inside body through your fatty liver or fat deposition in your body. So this is one of the reason why stress, or when you are in stress, sugars kicked in. Now comes to the second point. You were saying that yes, we were not on the move. We were quite used to be around. We were quite used to our routines get shifted. See, this is something that happens with everyone. Nobody was saying you not to do exercise. We were eating. We all were eating. During this whole during this whole 2 years, I think many chefs have been turned up. Many have turned up to be a great chefs. But the only thing is, we were only eating. See, exercise करने के लिए gym जाना, that is not at all mandatory. You can do exercise anywhere, anytime you want. You have such a ample of time you guys had. So it was something that is to be discussed in afterwards. Other point was I have already covered, overeating. We were like binging on food. I think everybody agrees with me, huh? Yes. Insomnia. Yes. Hello. Yes. The other thing was what I was discussing as sleeping pattern. Yes, sleeping pattern differs a lot. We all have a biological clock according to which we gets up, we sleeps. But during this lockdown period, or better not to call it a lockdown period or COVID period, I prefer to call it as a period of our nothing to do period. Because only one side was locked down. That is our this thing. We cannot move out. But basically, what we all did is we resolve ourselves to nothing to do period. We cannot exercise. Why? Why not? We can exercise at that time. At least we could have controlled our appetite, but we were binging on food. Stress, that is something which was not in our control. But yoga and meditations, everybody was talking about do some yoga, do some meditation, focus on something. Improve your, just inculcate some good habits in yourself. Just inculcate some your dreams, what you were not able to do some drawings, paintings, but we were just sitting in front of our
laptop, mobile, televisions, whatever, because nobody was working throughout the day even at that time. काम कहाँ से करते, काम था ही नहीं। तो कहीं ना कहीं चीजें हैं कि हम लोगों ने ये एक बीमारी के साथ साथ नासमझी काफी की है। चलो अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। तो क्या मेरे ख्याल से ये टॉपिक कवर हो ही चुका है कि इज इट रियली द वर्क फ्रॉम होम दैट हैज ट्रिगर्ड diabetes, or COVID that has triggered diabetes, or is it something that we were not managing ourselves? The main thing is health related issues. देखो क्या होता है कि लॉकडाउन नो लॉकडाउन, हम जब भी स्ट्रेस में होंगे, हम जब भी ओवर ईटिंग करेंगे, हम जब भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे पूरी तरह से आधारित हो जाएंगे, हम अपने स्लीप पैटर्न्स चेंज करेंगे, जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे हार्मोनल चेंजेस हो डेवलप होने चालू हो जाते हैं, इवन हमारे बावल मूवमेंट्स अफेक्ट हो जाते हैं, है ना। यू डोंट नो व्हेन टू शिट, और जब प्रॉपर शिट ही नहीं होगा तो इनटेक भी अच्छा नहीं होगा, इनटेक अच्छा नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा अगेन यू डोंट नो व्हेन टू शिट। ठीक है, स्लीपिंग पैटर्न, बायोलॉजिकल क्लॉक की मैंने बात की, इट इज, और अभी भी देखो पूरी तरह से लॉकडाउन खुले नहीं है, और हो सकता है वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट जो कल्चर जो है काफी लंबे समय तक रहने वाला है अपनी इंडस्ट्री में। तो हमें थोड़ा सा अपनी हैबिट्स को इस तरह से मैनिपुलेट करना है ताकि वो हमारी हेल्थ के साथ छेड़छाड़। स्लीपिंग हैबिट्स की मैं बात मानता हूँ ये सबका अफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि आज मीटिंग सुबह है, आज मीटिंग शाम को है, कभी दोपहर को जाती है, बट इन बिटवीन को तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सी एनी कोई भी पूरे दिन मीटिंग नहीं करने वाला, आई नो नोबडी इज डूइंग मीटिंग्स थ्रू आउट द डे 24 आवर्स। आपके पास एक टाइम होता है, उस टाइम को यूटिलाइज करो इन सम फ्रूटफुल वेज। योगा मेडिटेशन कर सकते हैं आप, just 15 to 20 minutes of yoga or meditation if you are getting time, more than sufficient to relax you। हम रिलैक्सेशन के स्मोकिंग और अल्कोहल की तरफ क्यों जा रहे हैं, है ना। उस केस के लिए हम कुछ और भी कर सकते हैं। गप्पे मारो, फोन उठा के गप्पे मार लो, अगर मिल नहीं पा रहे हो सामने आमने, अभी ऐसे मुलाकात हुई है ना हमारी, इसी तरह से हम गप्पे मार सकते हैं। कभी कभार की चीजें होती हैं, वो पार्टीज भी करो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमें अपने एटमॉस्फेयर को खुद ही बनाना पड़ेगा अगर ये कल्चर हमारे डिपार्टमेंट में, हमारी इंडस्ट्री में काफी लंबे समय तक रहने वाला है। क्योंकि हमेशा ये निग आउट करते रहेंगे कि नहीं हमें तो काम की वजह से ऐसा हो रहा है, काम की वजह से हो रहा है, तो कल को काम बंद हो जाएगा। अब काम बंद हो जाएगा तो और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे सबके सब। ठीक है, ओवरऑल देखो इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस करने लायक था नहीं, डॉक्टर सर, क्योंकि हाँ, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो यू आर ऑल फ्री टू आस्क एनीथिंग। हाँ डॉक्टर सर, मेरी टीम में जितने लोग हैं, द एवरेज एज फॉर माय टीम इज 24 to 25। ओके, इस एज में भी अगर लोगों को एंजाइटी लेवल्स बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस ज्यादा है, अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है, घर पे रहते हुए थोड़ा बहुत बीमारी होना सही है, लेकिन घर पे रहते हुए हर दूसरे दिन लोगों को हेडेक होना, हर दूसरे दिन तीसरे दिन फीवर का कंप्लेंट्स आना, इंडाइजेशन, इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम्स पिछले 6 महीने में टीम के साथ आई। देखो हेमंत, यहाँ पे मैं अभी वही बात कर रहा था कि एज डजंट मैटर इन दिस सिनेरियो, रेदर ये जो 20 से 30 साल वाली एज होती है वो एज होती है जब आपकी मेच्योरिटीज, अगर मैं बात करूं तो उस लेवल तक नहीं पहुंची होती कि यू कैन टैकल एवरी सिचुएशन। आपने जस्ट अभी काम करना चालू किया है, यू वर जस्ट एक्सपोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। मैं उन लोगों की बात नहीं करना जो हॉस्टलर्स रहे हैं काफी लंबे समय तक, बट मेजोरिटी की बात करें तो दे आर जस्ट एक्सपोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। वहां हर तरह का एनवायरनमेंट है, हर तरह के कलीग्स हैं, हर तरह के काम हैं जो उनके लेवल के भी हैं, और कई सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे लेवल्स के नहीं होते, क्योंकि हमें आदत पिछले
12 से 14 सालों तक डाली जाती है कि हाँ कुछ होमवर्क दे दिया, घर जाके होमवर्क पूरा किया, उसके बाद कॉलेज में भी हमें एक शेड्यूल होता है, एक कोर्स बनाया गया होता है जिसके थ्रू हमें काम करना होता है, सब एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द कोर्स। हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज के, मैं अभी तक शायद रेगुलर कोर्सेज की बात कर रहा था, कहीं ना कहीं रिलेट नहीं करता हमारे साथ, लेकिन हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज में भी थे। बट अगर हम रियलिटी की बात करें तो अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में भी कहाँ हम देखते हैं कि लोग इधर से उधर होते हैं, वही 4 से 5 टॉपिक होते हैं, वही 4 से 5 टॉपिक पढ़कर जाते हैं, वही पढ़ के हम एग्जाम क्लियर करते रहते हैं। साल भर पढ़ने वाली बातें तो बहुत अच्छी नहीं लगती नहीं है आजकल बात करते हुए, रात को पढ़ते हैं सुबह तक। तो ये जो हमने हैबिट बनाई थी ना अपनी, कि हम हर चीज को एट द मोमेंट पे आने पे फेस करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वहां जाके नर्वस हो जाते हैं। अगर यही काम देखो क्या होता है, ये जितने इंडाइजेशन, हेडेक, हेडेक की बात की, अब हेडेक एक ऐसी कंप्लेंट है जिसका कोई मापदंड नहीं है, देयर इज नो स्केल टू मेजर योर हेडेक, वी हैव टू बिलीव दैट यू हैव हेडेक, हाँ, राइट? बिलीव करना होगा, लेकिन अगर इस एज ग्रुप में लोगों को रेगुलरली हो रहा है, हाँ रेगुलरली हो रहा है, बिकॉज दे आर ओवर थिंकिंग, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू फेस द सिचुएशन ऑन नेक्स्ट डे। Most of the time, almost 80 to 90% times, headaches are just stress related. There are other causes of headache also, like your eyesight, right? Your blood pressure. Blood pressure check कराते रहते हैं आप लोग अपना? नहीं सर, नहीं। Yes, sir. नहीं सर, नहीं करा था। Unmute. Let this be quite interactive. अदरवाइज नो पॉइंट, मैं आपसे डिस्कस करके जाऊंगा। देखो मैं मेडिकल बोर्ड के सामने या मेडिकल फ्रेटर्निटी के सामने डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपना कुछ टर्म्स यूज करूं या कोई आपको पैथोफिजियोलॉजी समझाऊं, देयर इज नो पॉइंट। आप लोग सब लेमैन हैं, नॉन मेडिकल्स हैं, सो इट्स बेटर कि हम लोग इंटरेक्टिव इट्स ओपन फोरम, किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, किसी भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसा है जो आपके लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट कर रहा है, प्लीज ओपन है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। आप लोगों को, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ब्लड प्रेशर कितने लोगों ने चेक कराया, कंप्लेंट क्वाइट प्रोमिनेंट है, बट क्या हम लोगों ने अपने ब्लड प्रेशर्स वगैरह मॉनिटर किए कभी? नहीं किए। देखो क्या होता है, एक तो वर्क रिलेटेड हेडेक्स होते हैं, हमारा कुछ काम है और आज हमें हेडेक है, दैट इज समथिंग एंटायरली डिफरेंट। फॉर एवरी कंप्लेंट देयर आर टू थिंग्स, an organic cause and an inorganic cause. Organic causes are something that can be assessed by your doctor, that can be seen on some instruments. There are parameters for everything. Non-organic cause are like, नहीं आज मूड नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर मेरे पापा 50 प्लस है और मेरे पापा को डायबिटीज है, वो मतलब कंट्रोल करते हैं खाने पीने हर चीज पे, लेकिन उनके वो पैर में वो जो है ना दर्द हमेशा ही रहता है, वो कम नहीं होते। शुगर कितनी है उनकी? सर अभी तो नहीं चेक किया, मतलब मैंने पूछा नहीं है, लेकिन वो हमेशा चेक कराते रहते। हाँ हमेशा ही वो सर ये मैंने पूछा नहीं है, पूछा नहीं वो इसलिए भी क्योंकि होती नहीं है चेक। नहीं वो चेक प्रॉब्लम ये होती है कि वो रेगुलर चेकअप नहीं करते, है ना? जहाँ हम अपनी, जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, मेरे पास सबसे पहला काम यही होता है कि आप अपना ग्लूकोमीटर परचेज करो। कितने ग्लूकोमीटर है ना घर पे? हाँ सर। लास्ट टाइम स्ट्रिप्स कब खरीदी थी? सर मैंने ये पूछा नहीं है, लेकिन बट सर करते हैं सर पापा घर पे। हाँ देखो ज्यादातर क्या होता है, जो आपका प्रॉब्लम है वो तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, डायबिटीज में वेरी कॉमन है, टेस्ट करवाओ। हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर इज सम डेफिशिएंसीज ऑफ B12 लेवल्स इन हिज बॉडी, बट राइट नाउ जो बात है, जो बीच बीच में दर्द होते हैं, कोई भी हाइपरग्लाइसीमिया एपिसोड, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब बॉडी के अंदर शुगर्स के बढ़ जाना, कोई भी इस तरह का एपिसोड ट्रिगर करता है हमारे
नर्व पॉइंट्स को जहां से हमें पेन सेंसेशंस फील होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट साइन किसी भी डायबिटिक में। अगर आपको थोड़ा सा आप नॉर्मल रूटीन काम कर रहे हैं, आज कोई एक्सरसाइज या मतलब कोई भी ऐसा अनयूजुअल वर्क नहीं किया, बट स्टिल यू स्टार्ट हैविंग सम योर लोअर बैक एक्स और सम टिंगलिंग सेंसेशंस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट योर शुगर्स माइट हैव रेज्ड अप। मैं सिर्फ डायबिटिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो डायबिटिक नहीं है। कारण सीधा सा है, बिकॉज उन लोगों का जिनको डायबिटीज नहीं है, देयर बॉडी हैज द इनेट मैकेनिज्म टू काउंटर दिस थिंग। मेटाबॉलिज्म किक इन हो जाता है, बढ़ी हुई शुगर्स कंट्रोल हो जाती है, बिकॉज देयर बॉडी इज ऑलरेडी फंक्शनिंग नॉर्मली। यहाँ बात सिर्फ उन लोगों की चल रही है जिनको डायबिटीज है। उनके केस में बढ़ी हुई शुगर्स में इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कल को अभी हेमंत के पास सारी कंप्लेंट आएगी मेरे पैर में दर्द होगी, मेरे को शुगर होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा। उनकी ना शुगर्स वगैरह का प्रॉपर्ली चेक करवाओ और आस्क हिम टू गेट हिज विटामिन B12 टेस्ट डन। कई बार क्या होता है, जो हमारे न्यूरोनल एंडिंग्स, नर्व्स एंडिंग्स होती हैं, मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। आपने लोगों ने सब वायर्स देखे होंगे, इलेक्ट्रिकल वायर्स घर में यूज होते हैं, हाँ जी है ना। उसके ऊपर हमेशा एक शीट होती है और बीच में कॉपर वायर होता है जी ना। सर। करंट फ्लोज अराउंड दिस कॉपर वायर, ठीक है। और वो कॉपर वायर के अराउंड जो करंट फ्लो करता है, इतना तो आप लोग इंजीनियर्स हो, इतना तो आपको पता ही होगा ना कि कॉपर वायर से करंट नहीं फ्लो करता, उसके अराउंड फ्लो करता है, ठीक है ना। दिस प्रोटेक्टिव शीथिंग, दैट इज वी व्हाट वी कॉल, उसके इंसुलेशन जो होता है, दैट इज समथिंग जस्ट टू अवॉइड कि वो करंट जो है आपस में मैच ना करे। अगर कोई वायर साथ में जा रही है या इन केस वहां पे भी है तो वो हानि ना पहुंचे। अब होता क्या है, हमारी नर्व एंडिंग्स भी इसी तरह से होती हैं। कॉपर वायर होता है बीच में जो एक से दूसरे से कनेक्टेड होता है, उसके ऊपर एक इंसुलेशन होता है जिसको हम एक्सोनल शीट बोलते हैं, और वो हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। अब डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है, देयर इज इरोजन ऑफ दिस एक्सोनल शीट, मतलब कि कॉपर वायर के ऊपर की जो इंसुलेशन है वो घिस गई है। तो होता क्या है, जगह जगह स्पार्क्स आ रहे होते हैं, जगह जगह शॉर्ट सर्किट्स महसूस हो रहे होते हैं। तो ये जो पिन प्रिक्स पेन, अचानक से पेन आ जाना, टिंगलिंग सेंसेशन हो जाना, दिस इज जस्ट स्पार्किंग्स, है ना। व्हाट वी ऑल हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू कंट्रोल आवर शुगर, वी हैव टू टेक सम सप्लीमेंटेशंस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। जी सर। बाकी किसी को कोई और पूछना है? Sir, I have a question. हाँ। Sir, my mother is a diabetes patient and she's 54 years old. So Hmm. usually her sugar level ranges between 100 to 150, which seems pretty fine. But whenever she eats even a single biscuit, a very big blue color bump appears on her tongue, which is very painful. So is it because of diabetes and is it something very serious to worry about? Blue color bump appears on her leg, On her tongue, sir. Tongue. on her tongue. Right. It has nothing to do with diabetes. Okay. Might be change her biscuit. Okay. Okay, If sir. she eating some particular kind of biscuit which is doing some allergy to her, change the biscuit. Okay, so it might be some allergy. Biscuits से सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझो कि डायबिटीज में जब हम बात कर रहे होते हैं, हम चीनी की बात नहीं कर रहे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शुगर्स। दो हर कोई ये बोलता है शुगर कितनी है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लडी शुगर्स, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कैलोरीज। सो वेदर बिस्किट, वेदर चपाती, वेदर अनियन, वेदर potato, whatever you are taking calories, and we are talking about calories. These calories will go inside your body. These whatever you are taking go inside your body, it will get metabolized, and when it get metabolized, calories are being released. Calories are the free currency, like the free currency, it is the energy currency. So when we are discussing about diabetes, we generally mean to say, yes, diet of diabetes. When we are talking about diabetic diet, we don't have anything against sugar. You can have your sugar,
just control your calories. So there is something called glycemic. That's what I was saying कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये ज्यादा हो जाएगा. There is something called glycemic index. Every food has its own glycemic index. And what is glycemic index? Glycemic index is your content of sugar, content of your carbs in that particularly food substrate, whatever you are taking, or when it get metabolized, how much sugar or basically glucose, how much glucose it is going to produce inside your body, which are again going to produce energy. So this is the glucose that we are always talking about and not the sugar what we eat. तो अगर बिस्किट खा के बम्प आ रहा है और रोटी खा के नहीं आ रहा तो it has nothing to do with sugar. It has to do with allergies. है ना? Maybe Okay, she is sir. suffering from some sort of food allergy. Change her biscuit. Okay. Okay, sir. Thank you. I think I was clear about this thing. Yes, sir. Okay. ठीक, हम बात कर रहे थे स्ट्रेस की, क्योंकि मेन टॉपिक आज का हमारा स्ट्रेस रिलेटेड ही है. ये जो इंडाइजेशन है, ये आपका जो कंप्लेंट रहती है, एक और indigestion. प्रॉब्लम है जो कॉमनली हम लोगों के सबके बीच में है. ये आपने इंडाइजेशन वाली पार्ट की थी ना, दिस इज वेरी कॉमन. इसके अलावा है हम सबका ग्रोइंग वेट. Growing weight. Everybody in the team is gaining weight for last 1.5 years. ये मैंने सबसे पहले डिस्कस की थी पॉइंट की. लीवर ईटिंग. ऋतिक बोलो अंदर. See, this is the point that I discussed at the very beginning कि हम जब बैठे हुए हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, बीइंग अ ह्यूमन, हमारी एक आदत होती है कि हम हमेशा उस चीज को अपनाते हैं जो सबसे नजदीक होती है. मतलब विच इज वेरी इजी. हर तरह का खाना अवेलेबल था, हमारे पास टाइम अवेलेबल था, हमारे पास टीवी अवेलेबल था, हमारे पास फोन अवेलेबल था, हमारे पास काम तो था ही, नहीं भी था. ठीक है, तो हमने अपनाया क्या, हमने खाना खूब खाया. हमने टाइम नहीं देखा, ये टाइम मिला है, चल थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो. कई लोगों ने अच्छी एक्सरसाइज करके कई लोगों ने वेट रिड्यूस किया है. ओनली दोज हैव गेन्ड वेट हु वर डूइंग नथिंग. बहानेबाजी यहाँ चल रही थी, वहां कुछ नहीं हो रहा. ठीक है, तो वेट जो बढ़ा है लोगों का, इट इज नियरली बिकॉज ऑफ योर इनएक्टिव लाइफस्टाइल. 25 से 30 मिनट की स्किपिंग, जंपिंग, जॉगिंग कुछ भी कर सकते हो, और कुछ भी नहीं करना. स्कूल गए थे सब, हाल ही में रिसेंटली पास आउट हो आप लोग, तो सब यंग एज ग्रुप में हो, तो स्कूल में पीटी एक्सरसाइज करते थे. सिंपल पीटी एक्सरसाइज, हाथों को ऊपर नीचे, पैरों को आगे पीछे, सब मार्च वगैरह, ये सब 15 से 20 मिनट करो. योर इंडाइजेशन विल गो इन अनदर 10 days. Nobody will complain of indigestion. Your bowel movements will be regular. आपको अच्छी नींद भी आएगी, पूरी बॉडी की मूवमेंट्स होंगी, तो पॉस्चरल पेन्स भी खत्म हो जाएंगे. जो पूरे दिन कंप्यूटर पे बैठ के पॉस्चरल पेन्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे टेबल पे तो रेयरली बैठ रहे हैं आप लोग. कभी सोफे पे बैठ रहे हैं कंप्यूटर लेके, कभी बेड पे बैठ रहे हैं, कभी कंधा से रख के बैठ रहे हैं, कभी कैसे बैठ रहे हैं. तो पॉस्चरल पेन्स तो होने जरूरी है. और कहीं ना कहीं आप लोगों की जो ये चक्कर आना, सर दर्द होना, ये दीज आर पॉस्चर रिलेटेड. सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, विच इज अनदर कॉमन डिसऑर्डर दैट हैज come up among youngsters in this last 2 years. क्यों? क्योंकि हमने कोई भी पोस्चर मेंटेन कर लिया है. काम कर रहे हैं, बट देखो काम कर रहे हैं, हमें पता है प्रोलॉन्ग सिटिंग करनी है हमें किसी काम में, है ना. वी आर गोइंग टू डू सम वर्क, जरूर थोड़ी उसके लिए ऑफिस जाना ही जरूरी है. वी कैन मेंटेन द सेम डेकोरम एट आवर होम आल्सो. ठीक है, तो कई सारी चीजें थी जो लॉकडाउन के दौरान, या ये कह लो कि हमारा जब ये ऑफ पीरियड था उसके दौरान किया गया है, तो उसमें हेल्थ से रिलेटेड कई सारे ट्रिगर्स हुए हैं. अच्छी एक्सरसाइज करो, है ना. टाइम टू गुड. Well, doctor, I just wanted to ask something from about it, because being a, I know there is a scenario when you have to take
calories intake should be controlled. I don't believe in leaving sugars completely out of it, because I have been there, done that. And low sugar is also a dangerous thing when you completely left out all the carbs and all the sugars from it. I heard of this diabetic reversal program for type 2 diabetes. Is it something which is possible, or it is something which is only just a It's myth complete- around it? It's a complete myth. You cannot reverse your diabetes. I'm not talking about those diabetics who are early diabetics. See, basically, the question was from Sushant, I think. Yes. See, Sushant, basically understand diabetes हुआ क्यों है? Diabetes is nothing like an infection. मच्छर आया काट के चला गया. It is something, and you are not a. It is something. कैसे समझाऊं? मैं आप लोगों को ना एक एग्जांपल देता हूँ. You all can relate with it. है ना? That is a very good example. मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ. आप लोगों के सभी के बैंक अकाउंट्स तो होंगे, है ना? हाँ जी सर। कि आपका जो बैंक अकाउंट है, बचपन से एक बैंक अकाउंट बना के दिया गया था, एंड उसमें एक अमाउंट हमने डिपॉजिट कर दिया था. नाउ द कंडीशन इज कि आप उस अमाउंट में कुछ इंक्रीज नहीं कर सकते, है ना? नाउ कंसिडर कि हम अपनी जो एक्टिविटीज थी हमारी, जो बचपन से तक करते आए थे, हमारी फूड हैबिट्स, वो हमारी ट्रैकिंग, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, व्हाटएवर, जो हमारी हैबिट्स हैं, दीज आर आवर एक्सपेंसेस. हमने जितना खर्च किया बैंक से उतना लो, हमने अपना पैसा निकाला. अभी ये सीन था कि हमारे पास बैंक में बहुत सारा पैसा था और हम जो खर्च करते थे हमारे लॉसेस पूरे हो जाते थे, क्योंकि बैंक से हमें पैसा मिल जाता था, तो हमें कभी महसूस नहीं होता था. अब एक स्टेज आई जब वो हो जाता है ना कि यस, नाउ द लिमिट्स हैव स्टार्टेड, कि आपने एक्सपेंस किया, आप बैंक से पैसे लेने गए और उन्होंने कहा नहीं, आपको हम इतनी आसानी से पैसे नहीं देंगे, अब नहीं देंगे, अब आपको कुछ करना होगा इसके लिए, है ना? दैट इज द स्टेज जब आपकी डायबिटीज डायग्नोज की गई है ना? ये जो पैसा था, ये कंसिडर दिस टू बी इंसुलिन which is freely available inside body when we born, but the problem with that insulin is that it is a limited insulin and it cannot be refilled. एक पर्टिकुलर अमाउंट का बीटा लैंग्रेन सेल्स हमारे पेंक्रियाज में प्रेजेंस हैं, वही इंसुलिन बना रहे हैं, लेकिन दिक्कत उन सेल्स के साथ ही है कि उनको रिप्लेस या रीजनरेट नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि अब डायबिटीज डायग्नोज हो गए हुआ. ठीक है, अब ये स्टेज आती है जब हमने गोलियां चालू की होती हैं, मेडिसिन स्टार्ट की होती है. अनटिल अनलेस कि आप शुरू से ही कंगाल थे, आपके पास इंसुलिन था ही नहीं, तो आप जब भी काम कर रहे थे तो आप इंसुलिन ले रहे थे, यानी बाहर से लोन ले रहे थे. दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग. यहाँ बात होगी टाइप 2 वाले, जैसे कि सुशांत टाइप 2 है, डायबिटिक है. अब यहाँ पे हुआ क्या कि आप टैबलेट लेते हो, आपने चेक दिया, बैंक में जाके चेक दे दिया कि चेक हमें कैश कराना है. बैंक ने कहा ओके ठीक है, आपकी ड्रॉ लिमिट तो नहीं है, लेकिन हाँ चेक आपको कंसिडर किया जा सकता है. आपने चेक दिया, वहां से आपको मिल गया पैसा, या किसी और का चेक लाके आपने पकड़ा दिया और उसको आपको वहां से पैसे मिलने चालू हो गए. कुछ समय तक वो होता रहा. उसके बाद एक स्टेज आई कि अब आपकी जो चेक लिमिट वाली वो थी, वो भी खत्म हो गई. आपने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं 2 चेक लेके आऊंगा, 2 दवाई चालू कर दी, मैं 3 चेक लेके आऊंगा. बैंक वाला कहता है भैया नहीं है पैसे, तू कितने भी चेक ले आएगा, कितनी भी गोली खा देगा, मैं इंसुलिन नहीं दे सकता, मैं पैसे नहीं दे सकता. आप एक काम करो, तुम लोन लो, अपने कर्जे चलाओ. क्योंकि यहाँ पे हुआ गया था कि ये पता चलने के बाद भी कि हमें डायबिटीज हो गया, हमने अपने एक्सपेंसेस खत्म नहीं किए और हमने जो हमारे लिमिटेड रिसोर्स रह गए थे उनको जल्दी वॉश आउट कर दिया, है ना? तो अब हमारे पास मेडिसिन का कोई असर नहीं हो रहा, तो हमें बाहर से लोन लेना पड़ रहा है. बाहर से लोन मतलब बाहर से इंसुलिन लगाना पड़ रहा है. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कि इंसुलिन यूज करना पड़ेगा. अब आ जाते हैं उस बात पे कि रिवर्सल. अब इस पूरी कहानी में बताओ रिवर्सल के चांसेस कहाँ पे? देखो, कोई आपके बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकता, ये तो क्लियर मैंने पहले ही कर दिया था. आपकी कमाई, इनकम आपके अकाउंट में जा नहीं सकती.
है ना। सो जब रिवर्सल की बात चली होती है ना सुशांत, इट इज ओनली फॉर द अर्ली डायबिटिक्स हु हैव द रिसोर्सेज। वहां उनके एक्सपेंसेस कम कराए जाते हैं, वहां उनसे एक्सरसाइज कराते हैं, उनका कैलोरी इनटेक जो होता है उसको मिनिमाइज किया जाता है, उस कैलोरी को यूटिलाइज किया जाता है। Okay. ड्यूरिंग द पीरियड, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, these calories, these high calories, the hyperglycemic episodes tend to deposit in your body as fatty tissues. Now you have a lot of sugar reserves inside your body. मैंने बात की थी ना cortisol which leads to production of glucose inside your body by breaking down these जी. होता वही है ना। तो रिवर्सल इज अ कंप्लीट मिथ। देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिवर्सल until unless जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाए चीजों को, बट वो अभी इंडिया के लिए बहुत दूर की बात। फेसबुक्स पे मैं भी देखता हूँ वो एडवर्टाइजमेंट्स आए हुए होते हैं, कई लोग क्लेम्स करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ चाइनीज पद्धति हैं जो क्लेम करते हैं कि एक्यूपेंचर से कर देंगे, बट बेसिक पैथोफिजियोलॉजी जो है वो चेंज नहीं होने वाली ना। तो क्लेम्स वही रहते हैं, वही होता है ना कि बाबा जी का इलाज 100% है, 100 लोग गए, 80 सही हो गए क्योंकि उन्होंने वैसे भी सही हो जाना था, 20 नहीं सही हुए तो 20 की तो चलती है। तो बेसिकली जिसने सही होना था वो वैसे भी रिवर्स हो रहा था, उसने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया, उसने 4 साल के लिए डायबिटीज को धकेल दिया। तो जो उनकी शुगर 8 HbA1c मोर देन 7 आ रहा था, वो HbA1c उनका 6.2 हो गया। इट डजंट मीन कि उनकी शुगर रिवर्सल हो गई, इट हैज जस्ट बीन पोस्टपोन। ठीक है, अभी 4 साल के लिए पोस्टपोन हो गया, 4 साल बाद बात करेंगे। ठीक है, ओके। डॉक्टर साहब, अगर किसी की फैमिली में डायबिटीज हिस्ट्री है टाइप 1 के लिए, हाँ एट दिस अर्ली स्टेज जहां पर टीम हमारी 24-25 साल के अराउंड की है, वो किस तरीके से उसको अवॉइड कर सकते हैं, या वहां पर क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि जेनेटिक वाली है, अगर किसी की फैमिली में है जेनेटिक है? फैमिली हिस्ट्री टाइप 1 डायबिटीज की, तो उसमें अभी तक अगर 24 साल तक उसको डायबिटीज नहीं हुई है ना, तो देयर आर मोर देन 100% चांस कि उसको टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होगी। सी अगर फैमिली हिस्ट्री में उसको किसी कैसे पोस्टपोन कर सकते हैं, हम उसको कैसे ये कर सकते हैं कि वो ना है? दैट इज व्हाट आई वाज डिस्कसिंग। अपना एक्सपेंसेस कम करो। आपको पता है कि आपके भाई के अकाउंट में पैसे कम है ना, डिपॉजिटर तो आपके फादर है ना, उन्होंने डिपॉजिट किया था अकाउंट में दोनों को। आपको पता है आपके भाई के अकाउंट में पैसे कम है, तो जाहिर सी बात है आपके पापा के आप लाडले हो, चलो ठीक है उन्होंने थोड़े से ज्यादा कर दिए, बट इतने ज्यादा तो नहीं किए होंगे क्योंकि दुश्मनी आपके भाई से भी नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसके अकाउंट में 10 रुपए जमा किए तो आपके अकाउंट में 20 या 30 रुपए ही जमा होंगे, उससे ज्यादा नहीं है। अगर आपको दिख गया कि उसको शुरू से ही रिक्वायरमेंट आ रही है, देन इट इज बट ऑब्वियस कि आपको आएगी। दो ऑन लेटर स्टेजेस, दो ऑन सेम टाइम पे। तो only way is to control your expenses means to improve your lifestyle. आपको मीठा शुरू से ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखना होगा, आपको एक्सरसाइज रखनी, आपको फैटी डिपोजिशन, एटलीस्ट हम फैट डिपोजिशन को तो रोक सकते हैं ना। हम इननेट जो हमारा इनर मेटाबॉलिज्म है जो ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है उस मैकेनिज्म को तो रोक सकते हैं। चलो ठीक है, मान लिया कि खाने पीने को नहीं रोक पाएंगे, खाना पीना तो हम करेंगे ही करेंगे, उस पर भी डायबिटीज बन जाती है। वो इसलिए बन जाती है क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे। एक्सरसाइज करके जो हम काम कर रहे हैं वो हम काम ये कर रहे हैं कि जो एनर्जी हमें मिली है उसको इमीडिएटली यूटिलाइज कर रहे हैं। यूटिलाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपका लिपिड फॉर्मेशन में नहीं जाएगा, और लिपिड फॉर्मेशन में नहीं जाएगा तो डिपॉजिट्स नहीं होंगे। कहीं ना कहीं फैट लेयर जब बन जाती है, एक चीज और टर्म होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। फैट और लिपिड लेयर्स जो बनी होती है हमारी बॉडी के अंदर, दे लीड्स टू आपके पास जो इंसुलिन मौजूद है, हालांकि यू आर नॉट डायबिटिक बट स्टिल योर इंसुलिन इज अनेबल टू फंक्शन प्रॉपरली बिकॉज इट्स नॉट फाइंडिंग इट्स वे टू रीच देयर, है ना। इंसुलिन खाना नहीं पचाता है, खाना हमारा लिवर ही पचाता है और लिवर के सेल्स ही पचाते हैं। इंसुलिन का काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वो खाने को पकड़ के लिवर तक लेके जाता है, और अगर इंसुलिन नहीं होता, आई कार्ड है आपका, जिसके पास आई कार्ड है, जिसके पास वो की है वो अंदर जाएगा, जिसके पास की नहीं है वो अंदर नहीं जाएगा। बचपन से चाबी नहीं थी, टाइप 1 डायबिटीज, चाबी तो थी लेकिन अब चाबी की शेप मुड़ गई है, ताला खुलता नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी इन योर इंसुलिन। ठीक है, तो
यहाँ बात आ जाती है कि जेनेटिकल, अगर जेनेटिक्स है, देखो इट इज सिंपल सा फंडा है, एवरी इंडिविजुअल हैज 2 pairs of chromosomes, one from his father's side, one from his mother's side. If he has a genetic problem which is a dominant trait, diabetes is a dominant trait, definitely उनके दोनों ही पेयर्स या तो डायबिटिक हैं, मींस फादर और मदर दोनों डायबिटिक थे, या उनके फादर या मदर में से कोई डायबिटिक था, या उनके मैटरनल साइड से कोई डायबिटिक था, जहां से एक ट्रेट आया है जो डोमिनेंट नेचर में है। अब जाहिर सी बात है वो ट्रेट अगर उस तक पास ऑन हुआ है, देयर इज अ 50% चांस कि बाकी सिबलिंग्स भी डायबिटिक होंगे, देयर इज अ 50% चांस बाकी सिबलिंग्स डायबिटिक नहीं होंगे। ठीक है, तो कंट्रोल में यही रहेगा कि दे हैव टू improvise on their daily routine, they have to attain an active lifestyle, they have to cut short on their calorie intake, और finally वही eat healthy, live healthy. लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, ये पूरी टीम के लिए है। मेरी टीम अभी तक जो ऑफिस आ रही थी, वो ऑफिस में आकर मोस्ट ऑफ दिन का एक मेजर पोर्शन ऑफिस में बिता रहे थे, फैमिली से दूर होते थे, सब कुछ होता था। कई बार अपने गांव से, घर से बाहर निकलकर यहाँ नोएडा में, दिल्ली में रह रहे थे, तो वो हर समय फैमिली के सामने नहीं होते थे। आज की डेट में क्या है कि हर किसी की फैमिली में, अगर कोई किसी फैमिली में कोई फैमिली मेंबर बीमार है या किसी को किस तरीके की बीमारी है, और क्योंकि सब लोग घर पे रह रहे हैं, तो आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकल सकता। सामने मेरे फैमिली मेंबर बीमार हैं, कुछ हैं, तो उससे बढ़ता हुआ स्ट्रेस या उसकी वजह से आने वाली दिक्कतें जिसको मैं दूर कर सकूं, या मेरी टीम वालों को उस पर इम्पैक्ट कम हो, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? हर चीज हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, दुनिया जालिम होती है। जब आप बाहर निकले हो तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं है कि घर में आप हो तभी आपको बीमारी दिख रही है, फोन आ जाएगा तब भी आपका काम नहीं हो पाए। सो दिस इज समथिंग, दे आर टू अदर वर्ल्ड्स। आप दो दुनियाओं में काम कर रहे हैं, एक जो आपकी निजी जिंदगी है, जो आपकी निजी दुनिया है, दूसरी जो आपके कामकाज की दुनिया है। बैलेंस बनाना सीखना होगा। अभी आप बहुत यंग हो, आप लोग, you still guys have at least 30 years to work, ना? अगले 30 सालों में काम करने में आपको क्या लगता है किस तरह की सिचुएशन दोबारा नहीं आएंगी? तो अभी से सीखना होगा ना कि सिचुएशन को कोप अप कैसे किया जाए। आप मेच्योर इनफ हो टू वर्क, यू आर मेच्योर इनफ टू कम आउट ऑफ द वर्ल्ड, टू कम आउट योर होम एंड फेस द वर्ल्ड, यू आर मेच्योर इनफ टू सेलेक्ट अ गवर्नमेंट फॉर यू, you are mature enough to decide whether to smoke, whether to drink or not. Aren't you mature enough to cope up the things? Maturity is something that is to be attained. It is nothing कि आपको दे दी जाएगी. I am talking about mental maturity. And it is something that is attained by you through your actions, through your experiences, through your conflicts. So इस सिनेरियो में सबसे अच्छा तरीका यही होता है, have a healthy discussion with your family. जो आपका करीबी है, यार दोस्त जो भी है, have a healthy discussion with him. एक बहुत पुरानी कहावत है ना, तो बांटने से बढ़ जाता है। ऐसे नहीं है कि कटोरी में लेके जा रहे थे, बांटने से बढ़ गया। इट इज जस्ट कि हमने अपना स्ट्रेस आउट कर दिया, वी जस्ट ओपनड अप, है ना, वेंट आउट करते हैं। वेंटिलेटर होते हैं ना, कई बार होते हैं हमें बहुत दिमाग स्ट्रेसफुल है, बहुत परेशान हो रहे हैं, हम एकदम से शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं सामने वाले पे, एंड वी फील बेटर, इट इज जस्ट वेंट आउट। लेकिन अब ऐसे मत करने बैठ जाए कि चिल्लाना चालू कर दोगे। अदर प्रोसेस भी है कि आप बात करोगे तब भी वेंट आउट कर रहे हो, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। आप डिस्कशन करना चालू करो। आप कोई भी एक पर्टिकुलर, आप दोस्त सभी के होते हैं, आप सब एक फैमिली मेंबर ही हो, है ना, आपकी टीम जो है कि फैमिली ही है, आप किसी के साथ डिस्कस करो उस चीज को, नहीं होता घर पे डिस्कस करो, ठीक है। बेसिकली जब तक आप खुलोगे नहीं, तो ये कपाल जो है एक क्लोज कंपार्टमेंट है, प्रेशर बढ़ता रहेगा, दर्द होता रहेगा। सो यू नीड टू जस्ट वेंट आउट, ठीक है। ओके,
डायबिटीज का किसी भी तरीके से डायरेक्ट रिलेशन हार्ट पे या अपनी मेंटल हेल्थ पे या डिप्रेशन पे होता है? हर लेवल पे डायबिटीज का असर होता है. डायबिटीज इज ऑल्सो नोन एज अ पोटेंशियल कार्डियोवास्कुलर डिसीज. मीन्स कि एक डायबिटिक पेशेंट आपका हार्ट पेशेंट है, सूनर और लेटर ही विल हैव सम हार्ट प्रॉब्लम. इसीलिए कहते हैं डायबिटीज को जितना अच्छे से कंट्रोल रखोगे, मेक इट योर बेबी. जितना अच्छे से पालोगे उतना वो रिटर्न्स देके जाएगा, उतना कम परेशान करेगा. आपने उसको अभी से धुआंधार छोड़ दिया तो कल को घर से आपको ही निकालेगा. ठीक है, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ. कुछ और बात करनी है तो फिर हम डिस्कस करते हैं. Anyone else has any questions? यस सर. सर कि आज के टाइम में जैसे जब हम फूड लेते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, अपना लेते हैं, हमें पता नहीं होता कितनी हम कैलोरी बेसिकली हम खा रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं. लेकिन क्या कभी कभी ये कॉजेज होते हैं कि हमने इतनी कैलोरी, तो दिन भर में सपोज कीजिए हमने 100 कैलोरी एनर्जी लिया, ठीक है, लेकिन हमने बर्न सिर्फ 60 to 40 किया, ठीक है. कभी कभी ये जो एनर्जी काउंट होती जाती है, ये भी डायबिटीज का कॉजेज होता है होने का? ओवर द ईयर्स ऐसा नहीं है कि आज आपने 2300 किलो कैलोरी की जगह 4500 किलो कैलोरी ले लिया तो कल को आप डायबिटिक हो जाओगे. नो. फैट डिपोजिशन जो मैंने आपको बताया था ना, कैलोरी जो हम एक्सेसिव कैलोरीज होती है, दे फाइनली डिपॉजिटेड इन आवर सब अंडर आवर सबक्यूटेनियस टिश्यू एज अ फैटी लेयर. इट टेक्स मंथ्स, ईयर्स फॉर सच डिपोजिशन, है ना. हाँ, बट अगर आप कैलोरी काउंट की बात करें, किसी को भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता मैं कितनी कैलोरीज दे रहा हूँ, बट एक रफ आइडिया होता है. स्टार्ट डेवलपिंग एन हैबिट कि आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हो, उसके साथ साथ कैलोरी भी पढ़ना चालू करो, है ना. आमतौर पे अगर हम बात करें, वी शुड हैव अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट की जब डाइट की बात करते हैं ना, वी आर नेवर टॉकिंग अबाउट स्किपिंग योर मील्स. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हैव अ बैलेंस डाइट. आपकी प्लेट में 40% कार्ब्स होने चाहिए, 10% फैट होना चाहिए, 20 to 30% आपके प्रोटीन्स होने चाहिए, 10% आपके फाइबर्स होने चाहिए सैलेड में. तो इट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ प्लेट, है ना. whenever you are having a division of plate, there are chances that it is a healthy life, healthy diet. सब कुछ करने के बाद भी डायबिटीज डेवलप होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट थिंग, है ना. बट हाँ, कैलोरी काउंट अगर आपको लग रहा है कि एक्सेसिव एनर्जी है तो यूटिलाइज है ना. आज आपने ज्यादा खा लिया, रन 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा ऑन दैट डे, सब यूटिलाइज हो जाएगा. ठीक है, I think we should wind up. It's already 3. डॉक्टर साहब, एक क्विक क्वेश्चन. अगर हम लोगों को सेल्फ चेकअप करना है, व्हाट आर द अर्ली सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज? Early symptoms of diabetes, that is quite bookish, but yes, increase in your frequency of your urination, basically nocturnal urination, nighttime urine passing बहुत ज़्यादा हो जाएगा. There will be increased tendency to eat, weight gain, प्यास बहुत लगने लगेगी, गला सूखा रहेगा. Most of the time you will feel as if you are thirsty, you have dry throat. These are the very early signs, but सभी साइंस सब में हो ऐसा पॉसिबल नहीं है. कई बार हम लोग जब रेगुलर चेकअप्स करते हैं तब मिलते हैं. नॉन हीलिंग ऑफ एनी वुंड, इजी बॉइल्स, फ्रंकल्स, है ना. ये जो बॉइल्स हो जाते हैं स्किन पे जगह जगह, बलतोड़ जिसको बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो एन अर्ली साइन ऑफ डायबिटीज, बट इट इज नॉट द ओनली साइन ऑफ डायबिटीज. ठीक है, कुछ भी मतलब आपको लग रहा है, इफ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री, मेक इट अ हैबिट टू एटलीस्ट ईयरली गेट योरसेल्फ चेक फॉर डायबिटीज. क्योंकि जब तक सिम्टम्स आने चालू होते हैं ना, यू हैव ऑलरेडी बिकम ए डायबिटिक. ठीक है, ओके. कोई I guess, बाद में, है ना. I guess it was a fruitful session. We have learned few things. Probably it would help us to overcome our fear of families, overcome our fear of diabetes, early symptoms.
शायद Sir, कुछ I have a लाइफ question. यस Sir, what is basic difference of stress and depression? There is no difference. No difference. There Okay. is no difference between stress and depression. One leads to other. If Thank you you. are stressed out, regularly stressed out, you will get depressed. Okay. Yes. Actually, I have to leave. So Okay. it's nice talking to you all, guys. We'll plan some another session. That won't be a Sure. problem. Sure. Thank you, Dr. Gupta. Thank you you. for coming in and helping us out, solving our Thank some queries.